Hello dear students, warm welcome to our YouTube channel BioGeek। मैं हूं आपका आकाश सर और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे न्यू लेक्चर सीरीज on agricultural pest and their control from applied zoology subject। तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है that is an introduction to agricultural pest and their types, that is agricultural pest, store grain pest and veterinary pest। देखिए अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें पेस्ट की, so the influence of insects on the human life, destructive and the beneficials, can be traced back to the prehistoric day until now। A constant struggle is going on between man and the insects in the pursuit of food। These struggles will go on forever because there does not seem to be a final victory on either side। To know the destructive potentialities of some insects, one should visit a countryside invaded by a locust। हमने देखा है कि लोकस्ट का अटैक कैसे होता है। Within a couple of hours of the invasion, not a blade of grass or the green vegetables can be found in the area, and certain scale insects can completely destroy an orchard crop। The man is himself often the victim of this insect attack। Okay? So, बहुत पुराने जमाने से हम बोल रहे हैं प्री हिस्टोरिक डे से इंसेक्ट्स और ह्यूमन का जो है कुछ रिलेशन है। ओके कोई इंसेक्ट जो होते हैं वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, कोई बहुत बेनिफिशियल होता है। ओके और ह्यूमन और इंसेक्ट्स में या ऑर्थ्रोपोड्स में ये जो स्ट्रगल है फॉर परस्यूइंग अ फूड, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है और इसमें किसी की भी जीत नहीं होगी। ओके किसी भी जीत, क्योंकि इंसेक्ट की जो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ओके बहुत ज्यादा है। ओके विद इन आवर्स वो अटैक करके बहुत सारा क्रॉप जो है वो डैमेज कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो इमेज आपको एनिमेशन दिख रहा है कि ये जो इंसेक्ट है इट्स डिपेंड्स ऑन, इट्स फीड्स ऑन अ लीव्स। ओके वो कंप्लीटली लीव्स को खा जाएगा। अब कुछ इंसेक्ट जो होते हैं, कुछ पेस्ट जो होते हैं वो उसके अडल्ट फेज में डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, तो कुछ जो होते हैं वो लार्वल फेज, मतलब यानी कि हम कैटरपिलर्स कह सकते हैं, वो होते हैं। ठीक है अब ये है देखो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। ओके जो हमारे ग्रेन से उनके ऊपर फीड करते हैं। ठीक है सो पेस्ट इज एन any animal or the plant harmful to the humans or the human concern, या ऐसा कोई भी एनिमल या प्लांट जो कि ह्यूमन और ह्यूमन कंसर्न को हार्म करता हो, उसे आप क्या कहेंगे? पेस्ट। So the term is particularly used for the creatures that damage the crops, livestock and forestry, or causes a nuisance to the people, especially in their homes। Okay क्या कर रहे हैं? They can damage the crops, livestock, crops को damage कर रहे हैं, livestock को damage कर रहे हैं, forestry को damage कर रहे हैं, and even the creatures or these living organisms causes the nuisance to the people। okay people को nuisance cause कर रहे हैं। ठीक है especially in their homes। अगर मैं कहूँ कॉकरोच हमें दिख जाता है। ओके होम्स में होता है which is a household pest। क्या कहते हैं हम इसको? household pest which creates a nuisance। okay which creates a nuisance। अब the humans have modified the environment for their own purposes। ओके तो ह्यूमंस ने जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है फॉर देयर ओन पर्पसेस एंड आर इंटॉलरेंट ऑफ द अदर क्रिएचर्स ऑक्यूपाइंग द सेम स्पेस। इट्स बिकम इंटॉलरेंट टू द अदर क्रिएचर्स। okay those creatures which occupy the same area, same space, when their activities impact adversely on human objectives। okay so देखिए a pest is any living thing whether the animal, plant or the fungus which humans consider troublesome to themselves, their possessions or the environment, उसे हम क्या कहेंगे? पेस्ट। अब ये जो पेस्ट है, ये पेस्ट जो वर्ड है, ओके ये आया लैटिन वर्ड पेस्टिस से।
लैटिन वर्ड पेस्टिस से। एंड फ्रेंच वर्ड, दिस इज द वर्ड, फ्रेंच वर्ड पेस्टिस है। ओके, फ्रेंच वर्ड पेस्टिस। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है प्लेग और contagious disease. Contagio disease. So the pest word comes from the Latin word pestis and the French word peste. Its meaning is a plague or contagious disease. Okay, so pest is any species, strain or a biotype of a plant, animal or pathogenic agent injurious to plant or the plant products. Okay, पेस्ट क्या है? पेस्ट ऐसे कोई भी स्पीसीज है, स्ट्रेन है या बायोटाइप है ऑफ प्लांट, एनिमल्स और पैथोजेनिक एजेंट्स का जो इंजूरियस है टू द प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग, it's a loose concept as the organisms can be a pest in one setting but beneficial, domesticated or acceptable in another way. छत से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि हमने कहा आर्थ्रोपोड्स, कुछ आर्थ्रोपोड्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और डोमेस्टिकेटेड और एक्सेप्टेबल इन अनदर वे, बट वेयर एज द सम द अदर साइड पे अगर हम बात करें तो इट इज अ पेस्ट, इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, इट इज वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन काइंड्स और द ह्यूमन कंसर्न। सो अब हम जरा टाइप्स की अगर बात करें, द टाइप्स ऑफ प्लांट की, सॉरी टाइप ऑफ पेस्ट की, तो देखिए देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट गिवन। ओके, सो अब एग्रीकल्चरल पेस्ट होता है, कुछ पेस्ट जो होते हैं वो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं, कुछ पेस्ट जो होते हैं वो वेटरनरी पेस्ट होते हैं, कुछ हाउस होल्ड पेस्ट होते हैं। ओके, अब the pests are classified in many different ways. They are also classified to their mode of feedings, कि उनकी mode of feeding कैसी है, such as leaf feeders, sapsuckers, stem and fruit borers, root feeders, okay, like that. The different categories of the insect pest, okay, insect pest की अगर हम बात करें तो different categories है, जैसे कि कुछ pest जो होते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, regular pest हो सकते हैं, regular pest। अब रेगुलर पेस्ट मतलब क्या है कि इट्स अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली इन अ क्रॉप, ओके, एंड हैव द क्लोज एसोसिएशन विद दैट पर्टिकुलर क्रॉप। ओके, सो अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, इसे हम बोलेंगे रेगुलर पेस्ट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली। ओके, एंड ये जो रेगुलर पेस्ट होते हैं, दे हैव द क्लोज एसोसिएशन विथ the particular plant, उस particular plants के, for example chili thrips, brinjal shoot and fruit borers, okay, these insects। दूसरे होते हैं occasional, दूसरे होते हैं occasionally pest, occasional pest। अब ये occasional pest क्या है? Here a close association with a particular crop is absent and they occur infrequently, okay, so ये क्या होता है? occur infrequently, okay? मतलब बहुत frequently नहीं, occurly they can visit to the crop plant, उस plant के लिए, जैसे कि rice case worm हो गए, okay, कुछ castor slag caterpillar हो गए, mango stem borer हो गए, okay, so ये वाले जो these are called as a occasional pest। कुछ होते हैं seasonal pest, देखिए कुछ होते हैं सीजनल पेस्ट, नाम में ही है सीजनल पेस्ट, सो अकर मोस्टली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर। ओके, कुछ पर्टिकुलर सीजन में ये जो पेस्ट है वो हमें पाए जाते हैं। ओके, सो अकर मोस्टली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कुछ एक सीजन में, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ईयर, एंड यूजुअली जून जुलाई, राइस ग्रास ऊपर जून जुलाई, ओके, पैडी क्लाइंबिंग कटवर्म्स। ओके, सो ये जो है वो पर्टिकुलर सीजन में आ रहे हैं। ओके, दूसरे होते हैं, और एक होता है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट पेस्ट। क्या होता है? परसिस्टेंट पेस्ट। सो अकर ऑन अ क्रॉप ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, परसिस्टेंट है। ओके, थ्रू आउट ईयर उस प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे।
थ्रू आउट ईयर। ओके, सो मैं जो लिख रहा हूँ ये आप नोट्स बना के लिख सकते हो। ओके, थ्रू आउट द ईयर हमें ये देखने को मिलेंगे persistent. Okay, so for example scales and mealybugs on the many crops, thrips on the chilies, paddy stem borer. Then अब कुछ जो होते हैं एपिडेमिक होते हैं। ओके, कुछ होते हैं एपिडेमिक, एपिडेमिक पेस्ट। अब एपिडेमिक पेस्ट क्या होता है? दिस occurs in a severe form in a region. Okay, occurs in severe form, severe form in a region or locality, in a region or locality. Okay, locality at a particular season or the time only. कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर सीजन के लिए वो बहुत ज्यादा मात्रा में उसी एरिया में या उसी लोकेलिटी में ये हमें ज्यादा पाए जाते हैं, सो उसे हम कहते हैं एपिडेमिक। कुछ होते हैं एंडेमिक पेस्ट। ओके, एंडेमिक। अब एंडेमिक का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए रेस्ट्रिक्टेड होना। ओके, सो पेस्ट occurs regularly and confined mostly to a particular area or the locality. Okay, so उसी के लिए उसी लोकेलिटी में, पर्टिकुलर एरिया में वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, सो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? एंडेमिक। ओके, नेक्स्ट हमने क्या कहा? एंडेमिक, एंडेमिक। ओके, सो ये कुछ डिफरेंट कैटेगरीज थी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। ओके, रेगुलर, ओकेजनल, सीजनल, परसिस्टेंट, एपिडेमिक एंड एंडेमिक। अब डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ पेस्ट, ओके, पेस्ट के इंपॉर्टेंस के ऊपर भी पेस्ट जो है वो कुछ सेग्रीगेट किए हैं या हम बोल सकते हैं क्लासिफाई किए गए, जिसमें से एग्रीकल्चरल पेस्ट हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब as we know, the agriculture is one of the most important branch of biology which deals with the cultivation of the crop plants and domestication of the useful animals. The invention in agriculture by the human being has brought a big revolution in the ecosystem on the earth. So, of all demands of a man, food is of prime importance, and because of the population pressure, the task of increased food production is on our nation priority. So that's why in 1970s the so-called Green Revolution made remarkable contribution in the increasing the per acre yield of land because of the high yielding varieties of wheat, rice, maize, grains and cereals, जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया 1917 में। इसके फादर जो थे ग्रीन रिवोल्यूशन के, हमें पता होगा, दैट इज नॉर्मन बोरलॉ, द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। और इंडिया में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो किन के वजह से आया? तो वो आया एमएस स्वामीनाथन की वजह से, एमएस स्वामीनाथन की वजह से। सो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम कल्टिवेट करते हैं क्रॉप प्लांट्स को एंड इवन द डोमेस्टिकेशन ऑफ द लाइफ स्टॉक, यूजफुल एनिमल्स का। देखिए, ईच एंड एवरी, अब जरा थोड़ी सी पेस्ट के बारे में बात करते हैं। ईच एंड एवरी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय द नंबर ऑफ पेस्ट दैट कॉजेस द सीवियर डैमेज। ओके, so pest constitute a large number of insects attacking to the various crop plants. Okay, so basically अगर हम पेस्ट की बात करें तो पेस्ट में ज्यादा मात्रा में हमें क्या देखने को मिलता है? insects which attacking to the various crop plants. The immature stages or adult insects are either foliage feeders or the sap feeders. अब देखिए, immature stages यानी कि हम बोल सकते हैं कुछ लार्वी कैटरपिलर हो सकते हैं, ये भी डैमेज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अडल्ट फॉर्म जो होते हैं इंसेक्ट्स के वो भी डैमेज कर सकते हैं। अडल्ट फॉर्म हो तो वो भी क्या करेंगे? डैमेज करेंगे। ओके, सो इमैच्योर स्टेज हो या अडल्ट स्टेज हो, दीज इंसेक्ट, अगर हम उस इंसेक्ट की बात करें जो फीड करते हैं ऑन द क्रॉप प्लांट, दोज बियर्स chewing and sucking type of mouth parts. यहाँ पे आप देख सकते हो, they have the sucking type of mouth parts. Okay, sorry, chewing type of mouth parts and they have the sucking type of mouth parts. देखिए यहाँ पे, okay, वो क्या करते हैं? सैप जो है वो सैप सक करते हैं।
ओके, सो द फ्लूइड सैप जो होता है वो क्या करते हैं, सब करते हैं। कुछ फॉलिएज फीडर्स होते हैं, ओके, तो लीव्स वगैरह जो है वो लीव्स को पूरा खा जाते हैं, ठीक है। So they may be internal feeders or the borers or subterranean inhabitants. Okay, so simple सी बात है कि ये जो insects होते हैं या agricultural pest होते हैं, they are internal feeders or borers. Okay, मैं एक example आपको दिखाऊंगा stem borers. Okay, शुगर केन स्टेम बोरर्स में कि वो जो स्टेम के अंदर जाता है, ओके, इंटरनल पार्ट जो है वो इंटरनल पार्ट्स क्या करते हैं, फीड करते हैं। So the important crops like jowar, bajra, wheat, cotton, sugarcane, etc. are attacked by a pest like stem borer, shoot fly, Deccan wingless, grasshoppers, armyworms, flea beetles, aphids, leafhoppers, mites, jowar mishflies, etc. are the agricultural pests which attack the different type of the crop plants like jowar, bajra, wheat, cotton, sugarcane. तो देखिए, the cabbage worms, semilopos, potato beetles, okay? अब ये जो इंसेक्ट है, they possess a chewing type of mouth parts. इनमें सब में क्या है, chewing type of mouth parts है, and they chew and swallow the external parts of the plant. यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, इसके पास चिविंग माउथ पार्ट्स है, कैबेज वर्म्स। सो ये जो है वो एक्सटर्नल पार्ट्स जो है प्लांट के वो च्यू करते हैं और सॉलो करते हैं। ये पोटैटो बीटल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। सो दे हैव द चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. Then you can see the blister beetles. There are some blister beetles which feeds on the pollen grains or the pollen, whereas some blister beetles feeds on the petals of the flower. Okay, so they can damage ही कर रहे हैं. Then there are some insects which feeds on the grapes. There are some aphids, the grape aphids. There's some grape flea beetle and the grape thrips, okay, which feeds or attacking on the grapes. Whereas, as we know, sugarcane is the most important cash crop cultivated widely in the Maharashtra, and a single crop is infested by a stem borer, shoot borer moth, root borer, pyrella, and mealybug, okay, etc. So these are the different insect, different pest which feeds or which attack on a single crop plant, that is a sugar cane. You can see the images. The pyrella which feeds on the leaves को attack कर रहा है. Whereas the stem borer, okay, now see the stem borer, मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताऊंगा. These are internal feeders, okay. ये बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ sugar canes हम जब खाते हैं तब इसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, फ्रेश ब्राउन कलर का वो अंदर से देखने को मिलता है. That means that is infected by the stem borer. And these are the mealybugs, okay, mealybugs. Okay? So ये सारे जो थे, these are the some examples of the agricultural pest. अब थोड़ा सा बात करते हैं stored grain pest के बारे में, storage grain pest के बारे में, या हम उसे stored grain pest भी कह सकते हैं. So the storage of food grains has been a long practice with the cultivators and the traders. बहुत सारे cultivators, traders जो होते हैं वो storage करके रखते हैं food grains का, और ये बहुत पुरानी long practice है, अभी नहीं. So considerable losses both in quality and the quantity of the food grains takes place in the storage due to a number of factors. There are many factors, okay, जिसमें food grains पे क्या होता है, attack होता है, ओके, हम बोल सकते हैं, या उस फैक्टर से क्वालिटी एंड क्वांटिटी में बहुत ज्यादा लॉस होता है. देखिए, the organisms like insects, mites, rodents, fungi and the bacteria are directly responsible for causing loss in the stored products. Okay, बहुत सारे insects होते हैं, mites होते हैं, rodents, even rodents, you know, fungi and the bacterial also, okay, is directly responsible for the loss. It is estimated that about 7 to 10% stored grain are lost every year due to the stored grain pest in India. Stored grain pest के वजह से ही 7 to
10% जो है वो लॉस होता है एवरी ईयर, ओके, ऑन द स्टोर्ड ग्रेन. The stored grain foods, seeds, fruits, nuts, etc. are infected by the internal borer insects. In the kothis, you can see kothis होते हैं. Okay. Godowns, okay, these are the kothis actually. Godowns, warehouses are most injurious of all insects. ओके, सो देखिए हम बहुत बार क्या करते हैं, कुछ गोडाउन्स में ऐसे कुछ कोठीज वगैरह में क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं. स्टोर ग्रेन जो है, हम ग्रेन जो है वो स्टोर करके रखते हैं. तो यहाँ पे ये जो है बोरर्स होते हैं, इंटरनल बोरर्स हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. देखिए, so the borers can attack them even during harvesting stage in the farm land itself. बहुत सारे बोरर्स होते हैं, ओके, दे कैन अटैक द स्टोर्ड ग्रेन इवन ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग स्टेज. जब हार्वेस्टिंग स्टेज होती है तभी भी क्या करते हैं, ये उनको अफेक्ट करते हैं या उसके ऊपर अटैक करते हैं. सो द ग्रेन विविल्स, दैट इज पल्स ब्रिटल, राइस विविल, मॉथ्स, रेड रस्ट फ्लोर ब्रिटल, दिस इज red rust floor brittle, etc., cause the major damage to stored cereals like wheat, bajra, rice, barley, corn, oats, mills. ओके, ये जो है इनके ऊपर ये जो कुछ राइस विविल, पर्ल्स बिटल, मॉस जो है, रेड रस्ट फ्लोर बिटल जो है, दे अटैक करते हैं, दे मेजरली डैमेज. एंड pulses like lentils, peas, beans, grams, etc. respectively. Mainly, the insect spoil the stored grain and render them unfit for the human consumption. Simple सी बात है, जो इंसेक्ट जो है वो स्टोर ग्रेन पेस्ट के ऊपर एक्ट करेंगे, दे स्पॉइल इट, और अगर वो स्पॉइल हो गए तो दे आर बिकम अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन एंड फॉर द सॉइंग पर्पसेस. अब ये जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं, दीज आर डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स. एक होते हैं प्राइमरी पेस्ट, ओके. अब ये जो प्राइमरी पेस्ट होते हैं, ये देखो क्या होता है, प्राइमरी पेस्ट, दिस ग्रुप ऑफ पेस्ट कॉज द डैमेज टू इंटैक्ट ग्रेन्स, दैट इज अनक्रस्टेड. जो ग्रेन्स है, जो नॉर्मल अच्छे ग्रेन्स है, अनक्रस्ट है, ओके, अनडैमेज्ड है, इंटैक्ट, उसको डैमेज करेंगे तो हो गया प्राइमरी पेस्ट. देखिए कुछ इस तरीके से नॉर्मल है, ओके, इंटैक्ट ग्रेन, उसको ही अफेक्ट कर दिया, अनक्रस्टेड में उनको अफेक्ट कर दिया. दूसरे होते हैं सेकेंडरी पेस्ट. मतलब सेकेंडरी पेस्ट मतलब क्या, कि ऑलरेडी कुछ ग्रेन्स जो है वो क्रश्ड है, डैमेज है, ब्रोकन है, उसके ऊपर ये फीड करेंगे, उसके ऊपर ये अटैक करेंगे, तो उसको आप बोलोगे सेकेंडरी. देखिए, सो दिस ग्रुप ऑफ पेस्ट फीड और अटैक द ब्रोकन और क्रश्ड ग्रेन्स. ये समझने के लिए आपको इमेजेस दी हुई है कि ये जो है वो इंटैक्ट अनक्रश्ड स्टेट में ग्रेन्स है, उनके ऊपर फीड कर रहे हैं, सो प्राइमरी पेस्ट. ये ऑलरेडी खराब हुए, ब्रोकन है, क्रश्ड है, उनके ऊपर फीड कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो सेकेंडरी पेस्ट. वेटरनरी पेस्ट, ये दिस इज नॉट अ ग्रेन, दिस इज अ वेटरनरी पेस्ट. वेटरनरी पेस्ट, so the insects which cause damage to the domestic animals. अब वेटरनरी पेस्ट हम किन्हें कहें, ऐसे पेस्ट, ऐसे इंसेक्ट्स जो डैमेज करे डोमेस्टिक एनिमल्स को, like chicken, horses, cattle, etc. And blood-sucking insects like fleas, lice, bugs, mosquitoes, table flies as ectoparasites are the example of domestic animal pest. और उसे हम कहेंगे veterinary pest. देखिए, a biting lice like a malophaga cause the irritation and loss of flesh in the poultry farm. You can see these images of the malophaga. Malophaga, it is a biting lice, like, okay, lice के जैसे ही दिख रहे हैं आपको. So they feeds, okay, on fleshy poultry farms, flesh in the poultry farms. So उन्हें irritation कर रहे हैं, okay. So यहाँ पे देखिए, these are the examples you can see. Wildlife, livestock, terrestrial mammals के ऊपर, birds में आपको देखने को मिलेंगे. Their bite can itch and scratches because of this, okay. Now the tabinid flies and the horn fleas suck the blood from cattle and horses. Both the flies cause serious stomach disturbance in the horse. Now see, you can see this. These are the tabinid flies and the horn flies. These are the horn flies, okay, which sucks the blood from the cattle and horses.
Okay. Whereas the grub of ox warble, this is the ox warble, flies cause loss of flesh in a cattle and causes damage to the leather by cutting holes in the skin. So ये जो है ये होता है ox warble flies की वजह से. Okay, these are again attack on the cattle. So ये जो Malaphaga, terminating flies, horn flies, oxbow these are considered as a veterinary pest. They are considered as a veterinary pest. So यही तीन आपको टाइप थे पेस्ट के. ओके, जब हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे तो इतने ही है. इसके ऊपर हम एमसीक्यू भी बनाएंगे. द नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एमसीक्यू के ऊपर होगा और फिर हम इसमें सेकंड चैप्टर जो है वो सेकंड कंसेप्ट हम देखेंगे, मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस. ओके, जिसमें हम जवा स्टेम बोरर एंड रेड कॉटन बग के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टे ट्यून. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करो. अभी आपके सारे वीडियोस जो है सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग द ज़ूलॉजी सब्जेक्ट्स वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel, that is BioGeek. Thank you very much.